जी सर। अच्छा जी, तो लास्ट वीक क्या हुआ था? सर वकाश ने क्लास ली थी ई सॉफ्टवेयर पे, तो उसमें ईज की कमांड सिखाए थे सर ने और एक प्रॉब्लम करवाई थी ईज के थ्रू। तो वो आपको समझ में आ गया सही? यस सर। अच्छा, आप सर ये जो मैंने आपने सर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दो अपलोड किए हैं, एक सर साइक्लोमीटर का है और दूसरा भी सर ईज पे ही है, पर मेरे ख्याल से उसका मॉड है कोई साइक्लोमेट्री का। हाँ, मैं वही डिस्कस करना चाह रहा था। शायद मैं आप लोगों को शेयर करूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। Here in campus there is a problem in the Wi-Fi internet connection, so that's why we are experiencing this trouble here. So be patient, and we were discussing about this some additional features that I have shared you. Are you hearing me? Yes, sir. यस सर। So if you remember that I have shared you this setup psychometer. यस सर। So when you open this, I hope you have tried it यस at सर, your आई हैव homes. इंस्टॉल्ड इट। यस सर। So there is nothing but to this is the actually calculator. So in case when you are going to give some parameters for atmospheric air, it will be helpful in calculating the remaining quantities. So this is the what it looks like. So if you've been having this window here, so this window will give you some input parameters, will allow you to input the parameters. So if you're using the SI units or English units, you can use it. And you consider the atmospheric pressure. So mostly we have been considering 100 or 101.325. So exactly 101.325 kPa is the atmospheric pressure sea level. So this is same what sort of the psychometer that chart that we have used previously. So if you have been given the wet bulb temperature or the dry bulb temperature, any two quantities is available, then he will going to find these unknown quantities like dry bulb temperature, wet bulb temperature, or the relative humidity, specific humidity, specific volume, then fall P, and the dew point temperature. So this is what it will do. So for example, if you have been having a dry bulb temperature of say previously I think it would be 35, and if you're going to consider relative humidity as 50%, so if you click the button here, you will get this value. So if you're going to see the diagram window, I think there was a show plot, so it will give you the exact point on the psychometric chart. So this is only the feature that it can simply a calculator. You सर got यानी it? सर इसका मतलब एक मतलब मैक्रो जैसे होते हैं, तो ये इसका एक मैक्रो है। हाँ, ये बेसिकली आपका जो इस सॉफ्टवेयर ने एक सैम्पल के तौर पे आपके लिए बनाया है, ये भी एक ईस पे ही बना हुआ है। सो बट इट कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली. So this is simply a calculator. You can easily input the two values and you can get the psychometric properties or the remaining properties of the air. ओके सर। ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको दी थी, शायद आपको रिकॉल करें, दैट इज साइकिल पैड. ये सर ये वाला तो Have you समझ आ गया था, लेकिन सर साइकिल पैड समझ नहीं आया था। So have you installed it? So if you're going to install it, so you will open this. So he will asking के which type of analysis you are going to give. तो इसमें आपके पास सिर्फ ये होगा कि you have been going to have a cyclic analysis. So that may be open cycle, it may be a closed cycle. So related to the steady flow or the open system, you can have this open cycle option. And if you're going to have the closed cycle in which there will be no any mass transfers to be considered, then will be the closed cycle. So that will be related with the IC engines or the piston cylinder assembly in such system that will be involved in closed cycles. So if you're going to have the open cycle, it means that we're going to start from here. So he will give you some instruction, and this is somewhat self-explanatory. So this is a set of devices he mentioned here and symbols. तो अगर आप सिंपली वेपर कंप्रेशन साइकिल सीखना चाहते हैं, उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप अपना एक प्रॉब्लम लेके आएँ, उसको आप देखें. इसमें एक कूलर है, इसमें आपको कूलर चाहिए होगा, क्योंकि कूलर इन अ वे कि दिस इज बीन वर्किंग एज अ कंडेंसर. कूलर कंडेंसर होगा
और जो हीटर होगा दैट विल बी योर एवापोरेटर, ठीक है, जिसमें फ्लूइड को हीट ट्रांसफ़र हो रही हो, इसको कहते हैं हीटर, जिसमें हीट ऐड हो रही हो, और दिस इज़ द कूलर वेयर फ्रॉम वेयर द हीट इज़ बीन ट्रांसफर्ड रिजेक्टेड आउट. So along with that, there would be some compressor is also required. So this is a compressor device. So तो ये आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके डिवाइसेस जो हैं वो जो रिक्वायर्ड होंगे आपके एनालिसिस में, वो आप इसको आप यहाँ पर बिल्ड मोड में ले आ सकते हैं. ये बिल्ड मोड है, यानी यू आर गोइंग टू बिल्ड द सिस्टम. तो थ्रोटल वाल्व भी लाना पड़ेगा. तो दीज आर द 4 डिवाइसेस इक्विपमेंट्स. अब इसको आप थोड़ा अरेंज करेंगे. सो इफ़ यू क्लिक द राइट in order to change the direction, so you can easily make it in a way that it can be helpful for the analysis. समझ में आ रहा है आपको? यस सर. तो इस तरह आप इसको करते जाएंगे तो आपको पास एक सिस्टम आ जाएगा. अब इनको कनेक्ट करना है. सो जाहिर बात है कनेक्शन भी आपने देना है. तो जिसको पता होगा कि वेपर कंप्रेशन साइकिल कैसे चलता है, तो इसके लिए आपने इस जो आउटलेट है हीटर का, यानी कि एवापोरेटर का, इस हमारे पास हीटर जो होगा वो एवापोरेटर होगा, ठीक है. तो जब आप इसके एग्जिट को आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि अब इसको किससे मिलाना है. तो ये इसका एक क्लिक करके आप इस कंप्रेसर के इनलेट को क्लिक करेंगे तो ये आपको एक लाइन बना के दे देगा. दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ सक्शन लाइन. तो कंप्रेसर का मिलाना होगा आपको कंडेंसर के इनलेट के साथ, कंडेंसर के एग्जिट को मिलाना होगा थ्रोटलिंग वाल्व के इनलेट के साथ, एंड फाइनली सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द बिल्ड मोड. तो आपने साइकिल जब जैसे ही पूरा करेगा तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको बताएगा कि आपने बिल्ड मोड जो है आपने पूरा कर लिया है. तो अगर आप एनालाइज करना चाहें तो यू कैन एनालाइज इट. जब आप एनालाइज करने की क्लिक करेंगे तो ये वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा. सो इन ऑर्डर टू एनालाइज इट, तो अब आपके पास फॉर एग्जांपल आप सेट करते हो कि प्रेशर लिमिट्स आपकी हीटर की कूलर की क्या होनी चाहिए. सो यू कैन इसको हीटर के बारे में पूछेगा कि हीटर जो है वो कैसे मॉडल कर रहा हो. जैसे हम कहते हैं कि ये आइसोबेरिकली करेगा, प्रेशर ड्रॉप नहीं कंसीडर कर रहे हम, ठीक है. और आप इसमें से मास फ्लो रेट को भी एक ख़ास वैल्यू दे सकते हैं. क्या आपने 0.05 लिया था, याद होगा आपको. सो ये 0.05 फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा थ्रू दिस हीटर. और आप उसके बाद इसके जो ये पॉइंट है S1, so this is the point number 1 from where this fluid is been entering the compressor. So जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इनपुट वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी सब्सटेंस की. सब्सटेंस लिस्ट करेंगे. R134A यूज़ कर रहे हैं तो R134A यूज़ करेंगे. फेज पूछ रहा है तो फेज पूछेंगे, कहेंगे ये सैचुरेटेड है. सैचुरेटेड है तो क्वालिटी क्या है, दैट इज़ 1 है, ठीक है. तो ये इस तरह आप जो है इसको आप इनपुट करते जाएंगे. तो ये आप नोट करेंगे जो ग्रीन कलर जो आ रहा है ये आपकी इनपुट वैल्यूज़ हैं. ये जो ब्लू कर रहा है ये आपको कैलकुलेट करके बता रहा है. तो ये m डॉट ब्लू उसने 0.05 रखा है क्योंकि ये स्टेडी फ्लो है. तो आप समझ सकते हैं कि स्टेडी फ्लो रहेगा थ्रू आउट दी 0.05 किलोग्राम पर सेकेंड थ्रू द साइकिल, ठीक है. अच्छा, अगर आपने इसको प्रेशर भी डिफाइन करना है कि लो प्रेशर कितना है एवापोरेटर में, वो आपको बता सकते हैं आप. 0.8 है किलो पास्कल. अच्छा, ये कहता है कि 0.8 में सैचुरेट नहीं हो सकता. तो आप इसको रिट्रेट कर सकते हैं. आपके पास प्रॉब्लम है पुराना वाला? अच्छा 0.14 था. 0.14. तो अगर आप इसको अज्यूम कर लें 0.14, ये किलो पास्कल में मांग रहा है. सर वो एमपीए में था. अरे यार, हाँ. तो एमपीए मतलब क्या होगा ये? सही है. तो ये इस हिसाब से आपको सारी जो है वैल्यूज़ बता देगा कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा. जब क्वालिटी आपकी 1 है तो
तो ये रेस्ट ऑफ द वैल्यूज इज बीन कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसी तरह जब आप कंप्रेसर पे आएंगे तो कंप्रेसर में एजम्पशंस के बारे में पूछ रहा है, तो मेक एजम्पशंस कि कंप्रेसर आपका आइसेंट्रोपिकली काम करेगा, और आपका ये हो सकता है कि डायबिटिक भी हो, ठीक है। और अब आपके पास डिफाइन करेगा कुछ दूसरी चीज़ें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें आपको खुद ही ये देखिए, ईटा एस ने खुद ही 100% ले लिया है। इट मीन्स दैट इट इज़ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इज 100%। ये आप डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर नॉन आइसेंट्रोपिक लेंगे तो इसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब ये S2 है, यानी कि कंप्रेशन के बाद सब्सटेंस वही आपका 134A है। फेस का हमें अभी फिलहाल कोई पता नहीं है। प्रेशर जो उसका रेज करना है, फॉर एग्जांपल कितना किया था हमने सर 800 kPa। 800 kPa, सही बता रहे हैं। जी सर 0.8 एम्पियर था तो 800 kPa हो जाएगा। बहरहाल इसको इसी तरह थोड़ा इसको चेक करना पड़ेगा कि आप कुछ हो सकता है कोई वैल्यू ऐसी इसमें आ गई हो। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक इसमें बताया भी है इसने, तो इसको अगर आप नई फाइल खोलेंगे तो आपको लाइब्रेरी इसके मौजूद है। तो ये बेसिक रेफ्रिजरेटर सॉल्व है, तो ये आपकी सॉल्यूशन इसमें गिवन है। इसे R12 यूज़ किया है, कंप्रेसर यूज़ किया है, तो ये फ़ारेनहाइट में ले रहा है, ये केपी में ले रहा है। सो समवॉट यू बी हैविंग सम, तो ये आपको साइकिल भी बना दे सकता है। तो दिस साइकिल कैन बी ड्रॉन हियर। तो एनीवे, सो दिस इज अ सिंपली यूज फॉर द एनालाइजिंग द साइकिल्स, भले वो पावर साइकिल हो या रेफ्रिजरेशन साइकिल हो, ठीक है। इनको आप यूज़ करें तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये जो है वो आप उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। यू गॉट इट? यस सर। जी सर। आप इसको निकाल लेते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ये आपको समझ में आई कुछ? ये सारी कहानी समझ में आई आपको? कोई ऐसी क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं? साइकोमेट्रिक चार्ट, अच्छा, आपके पास साइकोमेट्रिक चार्ट की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए हमेशा, हार्ड कॉपी, ठीक है। ये आप निकाल के रखें अपने पास। तो इसी तरह हमने एक प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। इसमें सेंजिल के बुक में आपके पास एक चैप्टर है, गैस वेपर मिक्सचर्स एंड एयर कंडीशनिंग।
तो इसमें अभी इसकी बेसिक चीज़ें आप इसमें से ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो हमने किया था डिटेल में। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि साइकोमेट्रिक चार्ट अगर आपके सामने हो, here is 38. Is 38 is here? Yes, sir. Yes, sir. Baba, what will happen if you moving from Yes, sir. left Yes, to sir. right? Network issue है sir. Is it okay now? Sir, मुझे नेट स्लो. Are you hearing me? Yes, sir. So listen this my question. If you move from left to right on the psychometric chart, exactly right, what the process that Yes, you will sir. find? Sir, dry bulb temperature बढ़ रहा है. What will happen when dry bulb temperature is increasing? What actually happening? Zero two. Yes, sir. Yes, sir. So what will happen if any process on the psychometric chart is drawn from left to right? सर फ्रॉम लेफ्ट राइट ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो सिंपली हमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बताता है, तो इससे हम सिंपली ये डिनोट करते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस में ह्यूमिडिटी होती है। आपसे पूछा जाए कि कितने पॉसिबल मूवमेंट्स हो सकती हैं ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। एक होगी फ्रॉम यू कैन गो अप एंड यू कैन गो डाउन, ठीक है। तो ये चार जो डायरेक्शंस आपको इसमें मेंशन होंगी, दैट कैन बी रिगार्डेड एज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो इन डायरेक्शंस को आप मद्देनजर रखेंगे in order to define the processes. एटमॉस्फेरिक एयर या एयर कंडीशनिंग के लिए हमने डिस्कस किया था वेरी अर्ली क्लासेस कि whenever you have been having any process that has been taking place, you have to condition the air, you have to adopt some strategy in order to condition the air, ठीक है। तो उसमें हमने चार चीज़ें देखी थी, that is to be controlled. One is the temperature, second is the moisture, थर्ड इज द स्पीड एंड फोर्थ इज द क्लीननेस, ठीक है। तो मॉइस्चर और टेम्परेचर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी कंडीशनिंग टूल्स दैट शुड बी अडॉप्टेड फॉर द एयर कंडीशनिंग। तो आपका जो एयर कंडीशनर जो बेसिकली हो रहा है वो मेनली जो है वो जो मेजर जो काम कर रहा है दो वही कर रहा है, एक तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है और एक आपका कर रहा है मॉइस्चर कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, अब इस साइकोमेट्रिक चार्ट में के बुनियाद पे आपके पास चार प्रोसेसेस बताए जाएंगे। वन इज हीटिंग प्रोसेस, जिससे क्या होगा, आप यू हैव बीन हीटिंग द एयर, एंड अनदर इज अ कूलिंग प्रोसेस, दैट इज द कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। वन इज बी कॉल्ड एज द ह्यूमिडिफिकेशन, दैट इज द एडिशन ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, एंड देयर इज अ लास्ट वन इज द डीह्यूमिडिफिकेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। तो ये चार प्रोसेसेस आपके जहन में होनी चाहिए कि हीटिंग, कूलिंग, दैट इज रिगार्डिंग द टेम्परेचर कंट्रोल, एंड वन इज द ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, दैट इज रिगार्डिंग द मॉइस्चर कंट्रोल। आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो इन्हीं प्रोसेसेस को इसमें डिफाइन किया जाता है, दैट इज
ये एक प्रॉब्लम है, ये हमने लास्ट टाइम किया था कि कोई वैल्यूज़ हम लेके हम इसको साइक्लोमेट्रिक चार्ट को यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग दीज अननोन क्वांटिटीज़। वो आपके पास ईस्ट में भी आपने देख लिया कि वो जो है वो कैसे मालूम किया जाता है। अब ये एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इफ़ यू आर बीन हैविंग ए हीटिंग प्रोसेस, सो इफ़ यू मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट on the psychrometric chart, it means that you are showing there is an increase in the dry bulb temperature. तो dry bulb temperature वही होता है जो आपका आम टेम्परेचर इसको कहते हैं। तो whenever it has been increasing, it means that you have been undergoing a heating process. If this plane has been moving towards left, it is cooling process. The humidification of the air, it means that there is a addition of the moisture. So addition of moisture होगा तो without change in the temperature you are having an increase in the specific humidity. So specific humidity is sensitive only and only with the addition and removal of the moisture. It has nothing to do with the change in the temperature. Whereas whenever you have been moving, having heating and cooling processes, the temperatures have been changing, the relative humidity also will change because relative humidity is the sensitive to the temperature also. So downward direction will give you the dehumidification. So dehumidification is always been happen when the air becomes saturated. It never been happen within inside this diagram, but it will be happen only on the saturation line, saturation curve. ठीक है। अच्छा, ये आपकी सिंपल हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेसेस, ठीक है, जिसमें ओमेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट से देख सकते हैं कि व्हेनेवर यू आर मूविंग राइट और लेफ्ट, देयर विल बी नो चेंज इन द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और द ह्यूमिडिटी रेशियो। सो ओमेगा वैल्यू चेंज नहीं होगी व्हेनेवर हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस बीन टेकिंग प्लेस। अच्छा, अब आपके पास बेसिक जो मास बैलेंस इक्वेशंस आपके पास होने चाहिए, पता होनी चाहिए कि मास बैलेंस कैसे होता है। अच्छा, इस केस पे आपके पास मास बैलेंस ड्राई एयर का अलग होगा और मॉइस्चर का अलग होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रीम्स दोनों जो एक ही एयर के साथ दोनों चीज़ें आ रही हैं, उसका ड्राई पार्ट भी आ रहा है और उसका जो है मॉइस्चर भी आ रहा है, ठीक है। दोनों का मास बैलेंस करेंगे तो यू विल फाइंड दीज टू इक्वेशंस 1416 एंड 1417। जब आप एनर्जी एनालिसिस करेंगे तो यू आर बी रिक्वायरिंग टू सी दिस डायग्राम when you have been going to heat the you can say the atmospheric air which is entering from left to right, moving out from the right, so with the help of the heating coils। अच्छा, ये heating coil electrical resistance heater भी हो सकते हैं और ये heating coils के अंदर आपकी hot steam भी या कोई hot water या hot medium भी सर्कुलेट कर रहा होता है, तो दोनों हर सूरत में आपके पास एक heating process कहलाएगा। So it means that when air passes through it, it is simply a heating process, ठीक है। तो ये हीटिंग प्रोसेस के दौरान जारी बात है आपके पास एक एटमॉस्फेरिक एयर आती है एट टेम्परेचर T1, ओमेगा 1 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड phi 1 एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आप डायग्राम से बता सकते हैं कि व्हेन यू आर हैविंग ए हीटिंग प्रोसेस, सो दैट वुड बी लाइक दिस। लेट मी शो यू हियर। समझ में आ रहा है? जी सर। जब भी आप किसी भी ख़ास पॉइंट से इस तरफ जाएंगे तो आप बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये हीटिंग होगी तो जाहिर बात है आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट रहेगी उसी पॉइंट पे, इट विल नॉट चेंज। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि इस मूवमेंट की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ जो कंडीशनिंग हो रही है, दैट इज़ हीटिंग हो रही है, इस दौरान ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ साथ आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंज हो रही है, दैट इज़ डिक्रीजिंग। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हॉट एयर हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा किसी एटमॉस्फेरिक एयर का किसी कंडीशन से, तो उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो होती है कम हो जाती है। तो इसी तरह आपको महसूस ये होता है गर्मियों में या इस हीटिंग प्रोसेस के दौरान जब एटमॉस्फेरिक एयर एक्सेसिवली हीट हो जाती है तो ड्राइनेस महसूस होती है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट मॉइस्चर कंटेंट तो उतना ही होता है लेकिन उसमें
रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम ड्राइनेस महसूस करते हैं, दैट इज रिजल्टिंग इन द ड्राइनेस। तो दैट भी बिकॉज ऑफ दिस रीजन के रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है ऑन हीटिंग। ठीक है, तो इसका जब एनालिसिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे, आपके पास आएंगी। दैट इज अमाउंट ऑफ द हीट दैट इज सप्लाइड will be equal to ma into h2 minus h1। जब आप ये क्वेश्चन जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें आपके पास W आउट भी नहीं है, W इन भी नहीं है, कोई वर्क इनपुट आउटपुट नहीं है, इसमें सिर्फ हीट इन हो रही है। जब हीट इन हो रही है तो दैट विल बी अमाउंट ऑफ द हीट दैट इज बीन सप्लाइड टू द एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये पॉजिटिव होगी, और उसके अलावा बाकी आपके पास दो, एक इनलेट है एक आउटलेट है। तो इसके साथ जब आप इक्वेशन मोल्ड करेंगे तो यू विल फाइंड सच इक्वेशन। ठीक है, एंड दिस इज बी पर इन मास बेसिस। तो दिस इज अमाउंट ऑफ द हीट दैट विल बी सप्लाई। ठीक है, सिमिलरली जब कूलिंग करेंगे तब भी ऐसे होगा। यू हैव बीन हैविंग अ whenever you have been having a cooling process, so again your specific humidity remains same, but your temperature will decrease and relative humidity will tends to increase। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस जो सिंपली इसको कहते हैं हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेसेस। तो आप बता सकते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन द एटमॉस्फेरिक एयर इज बीन हीटेड। 102 102 102 is absent. 103 is also absent. 104. Yes, sir. Can you tell me what will happen when atmospheric air is heated only? दो मिनट पीछे आप थोड़ा सुन लेते तो क्या फर्क पड़ता है यार, बता देते। नहीं पता? नहीं सर। क्या पता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, लेकिन समझ नहीं आ रहा मुझे। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिफाइन करो। What is specific humidity ratio? 107, 107। यस सर। हाँ, हीटिंग के दौरान what are the things happening here? हम्म, कुछ पता नहीं क्या कर रहे, पता नहीं, सो रहे हैं सब। 09। जी सर। जी सर। Can you tell me what is happening during heating and cooling process? सर हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस में दोनों में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्यों? आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाया कर, क्योंकि सर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो अगर हम लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे तो वो एक्स एक्सिस तो लाइन सेम ही रहेगी, वो किसी तो खास फिजिकली क्यों कांस्टेंट रहती है? सर क्योंकि पर रेशियो उसका तो सेम ही रहेगा मॉइस्चर का पर किलोग्राम ऑफ उसमें ड्राई एयर में। सही है, मॉइस्चर ऐड ना हो और मॉइस्चर चेंज नहीं हो रही हो तो स्पेसिफिक भी चेंज नहीं होगी। दिस इज इनसेंसिटिव ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जी सर। कूलिंग के दौरान भी यही कुछ हो रहा है। ठीक है, जी सर। एक लिमिटिंग केस ऐसा होता है जब आप जैसे अभी आपने देखा कि हीटिंग
के दौरान जब आप मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, so you have been experiencing some dryness. It means that your relative humidity has been getting decreased. तो इसको compensate करने के लिए you will be requiring some moisture addition. इसको कहते हैं humidification. क्या कहते हैं इसको? Humidification. ये हो सकता है कि आपको तजुर्बा हो जब आप सर्दियों में हीटर चलाते हैं और काफ़ी देर के बाद जब हीटर हीट करते करते एटमॉस्फेयर एयर को इतना हीट कर देता है कि उसका जो आप फील करते हैं ड्राइनेस किस्म की एहसास होता है। तो उसका हल ये होता है कि आप एक पानी का टब रख के रूम में रख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी जो है एवापोरेट होता रहेगा और उस एवापोरेशन की वजह से ये ऐड होगा एटमॉस्फेरिक एयर में और मॉइस्चर कंटेंट उसका बढ़ जाएगा। तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ ह्यूमिडिफिकेशन। तो इट मीन्स दैट ये इतना एक्सेसिवली आपने एयर को हीट किया तो उसकी ड्राइनेस या बढ़ने की वजह से या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से आप उसको मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। अब ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस जो है आपका वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर से कोई सरोकार नहीं होगा, सिंपली आप उसको मॉइस्चर ऐड करेंगे सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो मॉइस्चर जिससे आप ऐड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर भी वही हो जो उस एयर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन आर बीन प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली स्टडीड। जब भी आपके पास कोई इक्विपमेंट होगा, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट होगा जो हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें एक ह्यूमिडिफायर भी लगा होता है। तो उस ह्यूमिडिफायर का काम ये होता है कि इन केस व्हेन द टेम्परेचर इज बीन एक्सेसिवली हाई एंड योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन point where you have been acquiring some moisture to be added, that humidifier will get activated and water particles or spray or hot water, so anything that will be required to add the moisture in that air is been necessary. तो वो आपको सप्लाई करता है हॉट वाटर या जो भी आप मॉइस्चर इसमें जिस टेम्परेचर भी भेजना चाहें। तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो इसी तरह जैसे आपके पास, आपने हेयर ड्रायर देखा? हेयर ड्रायर, हैव यू सीन द एयर ड्रायर? यस सर, हेयर ड्रायर देखा है। जिनके बाल हैं Yes, वो sir. उससे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। वो बेसिकली क्या है? बेसिकली हीटर है। आपके पास एक आगे जो है एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकली पावर्ड होगा and that be resulted in the heating element, and this heating element is been assisted by a fan. जब आप उसको ऑन करते हैं तो आपकी सक्शन से पीछे की तरफ से जो है आपकी हवा आती है and that has been blown on this side. तो बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक एयर को आप क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है जो आजकल जो नए आ रहे हैं उसमें आपका फैन भी होता है और हीटिंग एलिमेंट भी होता है। तो आपकी जो है एटमॉस्फेरिक एयर एक ख़ास लो टेम्परेचर पे आती है एंड गेट कॉन्टेक्टेड विद दिस हीटिंग एलिमेंट एंड बी लीविंग आउट सो द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड। लेकिन आप टेम्परेचर कंट्रोल करते करते या टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन साथ साथ आपकी ह्यूमिडिटी भी कम हो रही है। तो एयर कंडीशनिंग के लिए जब आप हीटिंग करते हैं तो उसके साथ साथ आप जब हीट एक्सेसिवली हो जाती है तो आपके पास एक इक्विपमेंट आता है जिसको कहते हैं ह्यूमिडिफायर। तो ह्यूमिडिफायर सिंपली एक पाइप की लाइन होगी जिसमें आपके पास एक शॉवर लगा होगा। जब भी आपके पास रिक्वायरमेंट होगी कि यू आर बीन एडिंग द मॉइस्चर, सो वाटर विल गेट इन एंड विल बी स्प्रेड इन दिस एयर। ये जो है वो स्प्रे होगा एयर में, और जब अब ये निकलेगी बाहर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मॉइस्चर ऐड हो चुका होगा और आपका टेम्परेचर जो आपको बढ़ा था दैट विल बी रिमेन सेम, प्रोवाइडेड कि दिस वाटर इज बीन कमिंग इन द सेम टेम्परेचर इट वाज बीन ऑफ दैट एयर। अगर ये वाटर आपका इवन हॉटर है इस एयर से, तो इस प्रोसेस के बाद आप कुछ हीटिंग भी होगी, इस टेम्परेचर इसका और भी बढ़ेगा और उसमें मॉइस्चर भी ऐड हो जाएगा।
तो मॉइस्चर भी ऐड होगा और हीटिंग भी होगी, तो जाहिर बात है आपका जो डायग्राम बनेगा वो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन नहीं बनेगा ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का, फिर वो आपका इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इसमें अब ये जो वेक्टर बनेगा इसमें आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपको बताएगा कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा, और आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट बताएगा कि इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ी। तो ये दोनों जो लाइन बनेगी ये शो कर रही है कि आपकी जो वाटर आ रहा है फॉर द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस उसका टेम्परेचर इस एयर से ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि आपकी न सिर्फ ये एयर हीट भी होगी बिकॉज हीट विल बी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और आपकी मॉइस्चर भी इसमें ऐड हो चुकी होगी। तो जब आपकी ये बाहर निकलेगी एयर एट दिस पॉइंट, दैट विल बी नॉट ओनली बीन हीटेड high temperature than the initial temperature, but also the specific humidity will be higher because of the addition of moisture. ठीक है, तो इसको एक लमसम में जो हमने जो 4 प्रोसेसेस अभी डिस्कस किए थे, हीटिंग, कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, तो इसको आप लम्प्स करेंगे इसमें, तो आपको हीटिंग के साथ ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस आप कह सकते हैं कि वो पार्ट एंड पार्सल होगा। ठीक है, तो हीट प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। सिमिलरली जब आप कूलिंग करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा अल्टीमेटली कि एयर जो है वो सैचुरेट हो सकती है। जब ये एयर सैचुरेट होगी, फर्दर कूलिंग करेंगे तो दैट एयर रिमेन सैचुरेटेड एंड यू आर बी हैविंग अ कंडेंसेशन ऑफ दैट मॉइस्चर इन द एयर। तो ये जो आपका जो ये लाइन में ड्रा कर रहा हूँ ऑन द सैचुरेशन कर्व, that is basically not only been associated with the decrease in temperature, but also it has been decreasing the specific humidity. ये specific humidity decrease क्यों हो रही है? Because you are having a removal of the moisture from this air. पास में आ रही है? तो इसी तरह कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन दोनों प्रोसेस साथ किए जाते हैं, और यही एक्सपीरियंस होता है जो आप अपने एयर कंडीशनर में भी देखते हैं कि जब आप कूलिंग मोड में रखते हो एयर कंडीशनर को, तो कुछ देर के बाद आपके एयर कंडीशनर से पीछे पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम अमाउंट ऑफ एयर इज बीन गेट कॉन्टेक्टेड कंटिन्यूसली with the cooling element, and that has been get condensed. The moisture in that air has been get condensed because it has been reached at the dew point. So this is the factor that has been associated with this. अब आपके पास हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन साथ होगी प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन दोनों को आप अलग रखेंगे। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस सारे प्रोसेस साथ भी हो सकते हैं और आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन एंड डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम दैट यू गोइंग टू डिज़ाइन। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सबकी तबीयत ठीक है या ख़राब हो गई है? तबीयत सबकी? कंफर्ट से किस तरह से हम रिलेट करेंगे ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर कंटेंट को, ड्यू पॉइंट को वगैरह को? क्या करेंगे? ह्यूमन कंफर्ट से हाँ, ह्यूमन कंफर्ट के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि एज ए नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है विद अ सर्टेन गिविंग एज इन द एरिया ऑफ द बॉडी, ये सारी जो है इसको मद्देनजर रखते हुए इट वाज बीन हैविंग experimentally found that a common human being can feel comfortable in this range of you can say temperature and the relative humidity. So
this is the ASHRAE standard, and this has been required to be maintained in a building. So we're going to discuss this later on. लेकिन ये आपके जहन में होना चाहिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड 50% relative humidity is actually the mostly be considered as a standard. ठीक है, तो जाहिर बात है जब भी आपके पास टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तो it's been moving around this 25 degree centigrade, so you've been required to maintain this 25 degree centigrade, and also have to be ensure that the relative humidity is maintained at 50%. ठीक है, तो अब इसके डिस्कशन हमारी चलती रहेगी और इसमें मौजूद है आपका लिटरेचर रिगार्डिंग दिस फैक्टर। अभी हमने इसको स्किप किया था। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर इसमें लिखा हुआ है 22 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका एक साइकोमेट्रिक चार्ट भी मेरे पास मौजूद है, वो आपको डिस्कस करूँगा आपको नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एंड मोस्ट पीपल प्रेफर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 40 to 60%। तो मैंने आपको जो वैल्यूज बताई है वो एवरेज है इनकी। ठीक है, तो 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो और आपकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी तकरीबन आपका टेम्परेचर हो, तो इन दैट कंडीशन यू कैन फील कंफर्टेबल। जी सर। सर ये जो असाइनमेंट आपने दिया है हमें, सर इसमें क्वेश्चन एक इसमें क्वेश्चन है रिवर्स ब्रेटन साइकिल से रिलेटेड, यानी कि ये जो केस रेफ्रिजरेशन थी सर, इसमें एफिशिएंसी हमने 2-3 ने निकाल के 09 से भी कंफर्म की थी, तो एफिशिएंसी वहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ रही है, आई गेस 5 तक आ रही है, तो देयर कुड बी द प्रॉब्लम्स। हां, तो सीओपी है ना, सीओपी है, वो एफिशिएंसी नहीं होगी, वो एफिशिएंसी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, सॉरी सर। अच्छा, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर्स। जी सर। हाँ, तो सर वो ग्रेटर देन 1 आ रही है। कितनी आ रही है सर? 5 तक आ रही है। इतनी तो नहीं होनी चाहिए। कौन सा प्रॉब्लम है सर हो रही है सर? वो क्वेश्चन नंबर 6 था, उसकी कंप्रेसर की एफिशिएंसी 1 से लेस देन ही आ रही थी आइसेंट्रोपिक, बट जो टरबाइन की निकालना चाह रहे थे उसके अंदर 1 से ग्रेटर आ रही है, यानी 1 पॉइंट समथिंग आ रही है। वो आपकी हो सकती है कोई मिस्टेक हो। ये असाइनमेंट ना आपके पास कौन सा सवाल है? क्वेश्चन 6 था सर। दिस वन। ये तो आपने यूज़ करना होगा जो आपकी टेबल्स होंगी एयर की। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी तो यूज़ नहीं कर सकते आप, जो आइसेंट्रोपिक रिलेशनशिप जो आपने यूज़ की होगी कंप्रेसर के लिए, सर। हमने वो तो आइसेंट्रोपिक यूज़ नहीं किया आपने। वही किए सर, वहाँ से कीज निकाले। वो तो सर कैसे ये करेंगे, इसमें एक्चुअल आइसेंट्रोपिक है ही नहीं। सर इसमें एक्चुअल केस तो गिवन था, बाकी इसने एफिशिएंसी बोली थी कि अगर आइसेंट्रोपिकली नहीं, आपने इस प्रॉब्लम में कभी T2/T1 इक्वल्स टू P2/P1 इज टू गामा माइनस 1/गामा इस तरह की रिलेशन यूज़ किए हैं? जी सर। जी सर, जी सर। तो गलत किया है ना आपने गलत किया है ना। वो इक्वेशंस तब एप्लीकेबल है जब आपका कंप्रेसर या टरबाइन आपका आइसेंट्रोपिक हो। सर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी निकालने के लिए तो वही आइसेंट्रोपिक रिलेशन से हम वो निकालेंगे ना। जब आइसेंट्रोपिक नहीं है यानी कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है, तो जाहिर बात है वो आइसेंट्रोपिक नहीं होगा डिवाइस। सर इसके एक्चुअल गिवन थे इसके। हाँ, एक्चुअल टेम्परेचर्स और प्रेशर्स इसके गिवन हैं, हमने इनको इनका एक्चुअल टेम्परेचर्स और प्रेशर के दरमियान आप पहले वर्क जो है एक्चुअल निकालेंगे और फिर आप उसका आइसेंट्रोपिक वर्क निकालेंगे। सर मगर इसमें लिखा तो है द प्रोसेस इन द कंप्रेसर और टरबाइन्स आर आइसेंट्रोपिक, सर वो रिलेशन तो लगा सकते हैं ना। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ सर ये
थर्ड लाइन अच्छा, the process in compressor turbine, ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये हो सकता है कहीं ये जो है ना, इसमें कंप्रेसर एफिशिएंसी, टर्बाइन एफिशिएंसी जो पूछ रहा है वो तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी पूछ रहा होगा। ठीक है, इसको देखें, सॉल्व इसको कर देखते हैं इसको। आई विल लेट यू नो। टेम्परेचर द टर्बाइन एग्जिट रीचेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका एक पहले डायग्राम सारा बनाना पड़ेगा, और जो आपका जो कूलर है टर्बाइन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, CPC values are given, तो इसकी मैं सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ फिर बाद में, ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और था कि कैस्केड वाली प्रॉब्लम है सर इसके अंदर। उसके अंदर सर लास्ट में उसका पार्ट था कि अगर पूरी साइकिल सिंगल उस पर काम करिए। सर वो मल्टी स्टेज वाली प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर 10 था आई थिंक। यस सर। इसके अंदर सर लास्ट पार्ट है, इसके अंदर अगर सिंगल वेपर कंप्रेसर साइकिल में काम कर रहा हो तो जब उसके वर्क पे कितना फर्क आएगा। तो सर इसमें मास फ्लो रेट जो रखेंगे वो दोनों को कंबाइन करके रखेंगे, अपर और लोअर साइकिल का, या फिर सिर्फ जो गिवन है सवाल में लोअर साइकिल का वो रखेंगे। उसको आप जो है ना ऐसा करें कि उस वो आप यूनिट मास फ्लो रेट ले सकते हैं सर। नीचे वाला जो है आपका जो मिनिमम है ना, वहीं पे एवापोरेटर लगा हुआ है ना आपका। जी सर। तो जाहिर बात है जब आपका उसका मास फ्लो रेट लेंगे आप। सर बुक जो थी ना, बुक में हाँ। जो सेंजिल वाली बुक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने जब 3-4 कंपेयर किया था COPs को, तो उसमें जो पहले वाले में ले रहा था ना सर, वो 0.05 यानी कि अपर वाले का ले रहा था। नहीं, अगर आपका जो नीचे वाला कितना है, सर वो नीचे वाली साइकिल में जितना मास फ्लो रेट है उससे वर्क तो कम आ रहा है। ऐसे आप ज्यादा ऐसा आना कर चाहिए अगर सकते हैं। सिंगल स्टेज में काम कर रहा है, मगर वो कम आ रहा है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि आप इसमें ये फैक्टर ले सकते हैं कि उन दोनों साइकिल्स को आप पर यूनिट मास बेसिस पे चलाओ, लेकिन वहाँ पर मास फ्लो रेट डिफरेंट हो सकते हैं कैस्केड में। जी सर। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पर यूनिट मास बेसिस करना पड़ेगा जब आप इसका साइकिल बनाएंगे ना, TS डायग्राम बनेगा या pH चार्ट बनेगा इसका, तो उसमें आपको कुछ एरिया मिलेगा। या तो ऐसे करें, जब आप इसका pH चार्ट बनाएंगे, सुने मेरी बात, जी जी सर। जब आप उसका pH चार्ट बनाते हैं तो उसमें आपको जब पूरा बना के कैस्केड का तो पूरा बनाएंगे आप, और उसी दो प्रेशर वैल्यूज के दरमियान आप एक सिंगल स्टेज का बनाएंगे, बन जाएगा। जी सर बना तो लिया, एथैल्पी से मिल गई सर, मास फ्लो रेट का मसला है वो क्या रखें। नहीं, मास फ्लो रेट को छोड़ दो, और जब आप इसका साइकिल बना लेंगे, दोनों के बनाएंगे, तो कुछ ऐसा एरिया मिलेगा आपको, मिलेगा जी जी सर एरिया मिलेगा। जो कि इजाफी होगा उससे कैस्केड से सिंगल वाले का। जी 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 सर। ठीक है, उस एरिया की जो 2 पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लेके, 2 पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लेके उसकी जब आप डेल्टा H मालूम करेंगे तो वो हो जाएगा इजाफी वर्क। जी सर बिल्कुल। बस में है कि नहीं? जी सर। जी सर आ रही है। तो वर्क जो होंगे वो 2 वर्क मिलेंगे आपको कैस्केड में, 2 कंप्रेसर्स हैं ना। जी सर। तो pH चार्ट से उन्हीं 2 कंप्रेसर्स के जो वर्क इनपुट्स हैं वो अलग अलग कैलकुलेट करके उसको ऐड करोगे। डेल्टा H सिंपली, मास फ्लो रेट को फॉरगेट करो। जी सर। ठीक है,
जी और जब आप इसका सिंगल साइकिल बनाएंगे दोनों प्रेशर वैल्यूज के दरमियान, तो जाहिर बात है वो पूरी लाइन खींच के जाओगे लास्ट प्रेशर तक। बिल्कुल बिल्कुल। उसका डेल्टा एच मालूम करो, जिसका डेल्टा एच ज़्यादा होगा प्रॉबेबली वो सिंगल का ही होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उसका वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, हम कह रहे हैं, लेकिन आप जब चेक करोगे तो जी ये जी डेल्टा एच जिसका भी ज़्यादा होगा वो आप कहेंगे कि इसका वर्क इतना ज़्यादा है पर किलोग्राम ऑफ द मास फ्लो रेट। ओके सर। समझ में आई बात? जी जी आ गई सर, जी बिल्कुल जी सर। और सर एक सवाल एक और था, क्वेश्चन नंबर 13 में टेम्परेचर दिए हुए हैं कंप्रेसर के बाद का, TH। ये सर ये हम्म, तो सर बाकी स्टेट तो मिल गई थी सारी, क्वेश्चन 8 6 5 स्टेट। मगर सर ये जो एवापोरेटर्स है पहले वाली स्टेट है, इसके लिए टेम्परेचर अच्छा, हमें पता होना। ये ज़हन रखिएगा कि TH अगर ये है तो इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए 40 होना चाहिए कम से कम। ये सर वो ही पूछना चाह रहा है, डिफरेंस रख के फिर लाइन हाँ ड्रॉ करें। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। और कुछ? नहीं नहीं बस यही पूछ। क्लास है आपकी नेक्स्ट? सर। ये अभी सर सर इंतज़ार से मालूम करते हैं। चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू लीव यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।